Yes, this. What is this, boys? This is the library file. We have the three names of the first statement, that is library file. The first name is library file. The second name is preprocessor directives, and the third name is header file. Okay? The abbreviation of stdio.h means standard input output. Okay? So the purpose of this standard input stdio.h is to execute the printer and scanf script. So that is the thing. The printer would stand up till you हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के तौर पर या जिसको हम कहते हैं कि हमारे प्री डिफाइंड जो स्टेटमेंट है मतलब प्रिंटफ है स्कैनफ है ये प्री डिफाइंड है या जिसको हम कहते हैं कि सिस्टम डिफाइंड। ठीक है, उसके अलावा कुछ यूजर डिफाइंड स्टेटमेंट्स भी होती हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर पे हमने सबसे पहले बात की कि द फर्स्ट लाइन इज नोन एज लाइब्रेरी फाइल, एंड इसके अलावा हम ये बात कर रहे हैं कि इसको हेडर फाइल भी कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। ये लिखने का पर्पस क्या है? ताकि प्रिंट एफ और स्कैन एफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए। अगर हम stdio.h नहीं लिखते तो वी कैन नॉट execute printf and scanf statement, because the purpose of stdio.h is to you can say uh, execute the standard input statements. ठीक है जी? Dot h means header file. So this is about the syntax. Okay, what is the purpose of void? Void means void is the prototype here. Okay, main, what is the purpose of main? But main is the name of the main function. Okay, this is the name of the main function. And what is the purpose of this void? This void is just to you can say utilize as the parameter and argument. At that point, the void statement is not be used in this equation. Okay? So after that, we will mention the printf, and in the inverted comma, we can write any kind of comment, any statement like kind of Pakistan. Okay? That is about the thing. Okay, now we are going towards the proper structure and definition. Yeah. So moving towards the next. Yes, that is structure. अच्छा जी, बस ये हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रक्चर की, इसमें आप देखें कि हमने पहले बात की थी। अगर हम डेफ सी प्लस प्लस ओपन करें, ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के तौर पे ये दो लाइन, दो स्टेटमेंट्स यूटिलाइज हो रही है। ठीक है जी, अब हम बुक पे चलते हैं तो बुक पे भी देखें कि ये लिखा हुआ है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स से मुराद क्या होता है? फोल्डर्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो ये दो लाइंस हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का ही रोल प्ले कर रही होती है। प्री प्रोसेसर मीन्स कि जब भी कोई प्रोसेसिंग होती है तो ये पहले ही एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, और जब ये लिखी जाती हैं तो इट मीन्स के इनके रेलेवेंट जो नीचे ये स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूटेबल होती हैं। ठीक है जी, ये लिंक होती हैं ऊपर इन स्टेटमेंट से। ठीक है, और डिक्लेयर होती हैं, जैसे हम ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, नीचे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लिहाजा दैट इज द मेन थिंग। ऊपर हम पहले उसकी डिक्लेरेशन करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की, उसके बाद नीचे हम प्रिंट ऑफ स्कैन उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद है जी फोन आई डॉट एच। फोन आई डॉट एच इज यूज टू राइट हियर द जेड सी एच
and the purpose of that sketch is to hold the screen. That is the thing. Now, next thing is main function. So as we already discussed that the int main is the name of main function here. Int and void is working as the prototype. Okay. And after that, this main is the name of the main function. And in this bracket, we can write any parameter, any argument, but at that point, at the situation, we don't need. Okay, now, after that, we have local declarations. Okay. Local declaration means variable declarations. Okay. So we have different kind of variables, and the two are main global variables and local variables. So here we will use local variables. So that's why here the name is local declaration. And after that, we have block of statements. We can say it as the statements and set of statements. So under in the main body like this, we have the program written here, and these two lines are local declarations, and this printf scanf. These all are the block of statements, and after that the bracket is closed. The main function is closed. The main function started from the line number 3 to line number 12. Okay, so that is the main thing. So that is the structure. Was this is the normal program like this we have a normal program hash include std.h, that is the library, and after that int is the prototype, main is the name of main function. From that point we are going to take start printf hello world. We have to write the hello world in inverted comma under printf statement. After that semicolon, now we are going to execute this from this option. Now the program is executing. So this is the error. Why the error? You can say it as, you can check it as error expected initializer before printf. Yes, initializer की बात की है कि initializer नहीं लगा हुआ, like block statements block bracket कहते हैं, ये हमने नहीं थी लगाई. तो अब देखिए जरा ये क्या होता है. हमने दोबारा किया एग्जीक्यूट, कंपाइल किया, और after compilation process we can analyze that. Here we have zero error, warning is zero, and this is the directory of output, and the size is this, and compilation time is 5.22 seconds. So this is the status. So now we are going to execute the output from here run F12. So this is the output file hello world, like जो हमने printf statement में लिखा वही स्क्रीन पे आ गया. ठीक है जी. इसके अलावा हमारे पास और भी काफी प्रोग्राम्स हैं लाइक दिस. यस, दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द प्रोग्राम. अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें कि ये एक पूरी फैक्ट्री का प्रोग्राम आ गया जिसमें वो सैलरीज को कर रहे हैं कैलकुलेट. ठीक है जी. उसके अलावा हमारे पास और भी है, हाउस रेंट है, इसको भी हम करते हैं एग्जीक्यूट. तो आप देखें कि हम किस तरह से हाउस रेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. एंटर योर बेसिक पे हमारी है इन केस 10,000. ठीक है जी. इसके बाद वो आपको बेसिक पे के तौर पे बता रहा है कि जी आपकी टोटल सैलरी है 13,000. उस हिसाब से उसने अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म की है और हमें वो टोटल बता रहा है. उसके बाद देखें जी ये भी एक प्रोग्राम है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा. एंटर योर मंथली इनकम, इन केस हम लिखते हैं जी 10,000. ठीक है. और उसके बाद हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट वगैरह. एंटर योर इलेक्ट्रिक बिल, तो हम कहते हैं हमें 3,000 आया जी इलेक्ट्रिक बिल. ठीक है, ये सपोज किया जा रहा है. फिर उसके बाद एंटर योर गैस बिल 2,000 लिख देते हैं गैस बिल. इसके बाद एंटर योर फूड एक्सपेंस. ठीक है जी, हम लिखते हैं जी 4,000 फूड एक्सपेंस हो गया हमारा. ठीक है. अब देखिए उससे सारा हमें स्टेटस बता दिया. टोटल मंथली एक्सपेंस आपका जी 9,000 है. टोटल ईयरली एक्सपेंस, साल का पूरा एक्सपेंस आपका 10 था. ये है जी 1,08,000. ठीक है जी. उसके बाद है टोटल मंथली सेविंग हमारी है 1,000. टोटल ईयरली सेविंग हमारी 12,000 है. एवरेज सेविंग पर मंथ 83 है, पर मंथ 750. ठीक है जी. इस तरह के प्रोग्राम्स हम फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इसके बाद ये भी है जी
प्रोग्राम। मैं आपको सारे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए जरा कि किस तरह से हमने चला। तो एंटर एनी कैरेक्टर, हमने कैरेक्टर लिखा एफ, हमको कह रहे हैं जी इंक्रीमेंट बताए कितना लगे, हम कहते हैं 4 का लगे। तो एफ के बाद क्या आता है जी, FGHI और जे। तो देखें जरा 4 के इंक्रीमेंट के बाद जे आता है, सिर्फ जे डिस्प्ले करती है। ठीक है, तो लास्ट वाला प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें क्या है,